عزیز ساتھیوں، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جی لگا کر درود شریف پڑھی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کالذاقۃ التی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تب زندہ دل ہے، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضرات، میں آج کی اس مجلس پاک کے ہمارے جتنے نمائندے ہیں، جناب گلزار صاحب، جناب عبد القدوس صاحب اور ان کے برادران حیات صاحب اور مکھیہ پرتنیدھی راجو بھائی اور جتنے لوگ ہیں اس جلسے کو سجانے میں، ہمارے سیکریٹری صاحب اور ہمارے سابق سیکریٹری صاحب، سنیے، کیونکہ نبی کی نعت پڑھنا آسان ہے، نبی کی نعت پڑھ کر اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ محبوب الشعراء فیروز الدولہ جمیل اختر صاحب، جتنے علماء شعراء ہیں سب میرے سر کے تاج ہیں، اور ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، آج مرحوم کلام صاحب کی روح یہاں سے ہم لوگ ان کی روح کو اصال کریں گے، اور نبیوں کے امام یہاں آئے ہوئے ہیں، کتنے خوش نظر آ رہے ہوں گے، کتنی خوشی ہو رہی ہوگی۔ اس لیے میرے وطن کے بولے مسلمانوں، نبی کی محبت میں چائے پلاتے رہیے حیات بھائی، ہے نا؟ ایک ارے بابو کہاں جائے لگے ہو، بیٹھ جا۔ ایک جلسے میں ایک آدمی، ہمارے ہاشم رضا مدنی، حافظ ایوب صاحب قبلہ، ہمارے حافظ امتیاز صاحب، حافظ امجد صاحب، مولانا مفتی عرفان صاحب، حافظ نعیم صاحب، جتنے لوگ ہیں سب میرے سر کے تاج ہیں۔ اللہ اللہ، ایک جلسے میں ایک مقرر تقریر کر رہا، اسلام بہت پیچھے ہے، اسلام بہت پیچھے ہے، تو ایک اسلام نام کا ایک آدمی تھا، وہ تھوڑا سا آگے آ کے بیچ میں بیٹھ گیا، پھر کہا اسلام بہت پیچھے ہے، وہ تھوڑا سا بیچ سے آگے آ کر کے تھوڑا سا بیٹھا، پھر اسلام بہت پیچھے ہے، اب وہ آؤ لتاؤ بالکل آگے آ گیا، پھر مقرری صاحب کا اسلام بہت پیچھے ہے، اب وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ حضور کیا میں آپ کے سر پہ بیٹھ جاؤں؟ ارے وہاں تھا تو بیچ میں آیا، بیچ میں تھا تو آگے آیا، پھر کہہ رہے اسلام بہت پیچھے، یہاں بھی اسلام ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر ہے، دیکھیے سبحان اللہ، دو گو اسلام ہے، یہ اسلام ادھر بھی ہے۔ کہا حضور آپ کے ماتھا میں بیٹھ جاؤں؟ اور ایک مقرر جلسے میں تقریر کرنے لگا، سیکریٹری صاحب، راجو بھائی تقریر کر رہا ہے، اور آنکھ بند کر کے سب مجمع والا سب بھاگ گیا، ایک بوڑھا ڈنڈا لے کے وہاں پڑا ہے، ہمارے رستم چچا جیسا، دیکھیے بوڑھا ہے لیکن ڈنڈا بھی ہے، ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں۔ جب تقریر ختم ہوئی آنکھ کھولی، بولا سب بھاگ گیا؟ بولا ہاں سب بھاگ گیا۔ بولا چچا آپ بہت اچھے ہیں، آپ میری تقریر سن کے جائیے گا۔ بولا ارے یار میں تقریر آپ کی تھوڑے سننے والا تھا، میں تقریر نہیں سنتا، میں بھی بھاگ جاتا، لیکن جس چوکی میں آپ کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں وہ چوکی میری ہے، اور اس چوکی کی چوکی داری کر رہا ہوں، نہیں تو میں بھی چلا جاتا۔ حضرت محبوب الشعراء، ارے ان کے لطیفے کو آپ نے سنا کہاں ہے؟ ہاں ایک جگہ میں بولے تھے، ہم کو یاد ہے حضرت، ایک آدمی کا 4 گو بیٹا تھا، کئے گو؟ جیسے ابھی ہم لوگ جلسہ کرانے والے 4 گو ہیں،
है कि नहीं है? 4 गो बेटा है कलाम साहब को, अल्लाह सलामत रखे। बहुत 5 गो है, अच्छा 5 गो बेटा है माशाल्लाह। पंजतन के नाम पर ये देखिए कलाम साहब के चचा आ गए। आप भी जानते हैं कि शायर लोग का बाल बच्चा आशीर्वाद का आटा खाता है, मौलाना शहादत का बेटा या बाल बच्चा अलकतरा थोड़े पीता है। देखिए चचा, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए हार से काम नहीं चलेगा। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चचा अब्दुल कलाम साहब के बड़े भाई, उनसे बड़े थे ना, ये बड़े हैं ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। महबूबुश शोरा, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में कलाम पढ़ते हैं, नबियों की मोहब्बत में कलाम पढ़ते हैं। लेकिन आज जलसा सजाने वालों ने जलसा सजाकर बताया कि हम नबी की मोहब्बत में पाक पंजतन है। हाँ जो भी है अल्लाह सलामत रखे। नहीं हजरत ही का है, और कहिएगा तो मैं ये सब भी हजरत को ही दे दूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं मांगने वाले में से नहीं हूँ, देने वाले में से हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझको, मेरे पर बड़ा एहसान है। हजरत महबूबुश शोरा ने अभी एक कलाम पढ़ा, जमील भाई भी कहे कि कलाम साहब को जन्नत अता करियो मौला। ये कहा कलाम साहब जब मुखिया का चुनाव हुआ और हजरत हम लोग वहां पर थे बोकारो स्टील सिटी में, ये माला लेकर गए, कहा आज मैं मुखिया जी को बनाऊंगा और पहनाकर दुनिया को बताऊंगा कि मेरा समझे मुखिया है, मेरा समझे मुखिया है। वो हौसला था। हमने कहा चचा आपका बड़ा हौसला है। कहा कसम से ये दिन देखने के लिए आंखें तरस गई थी। सुभान अल्लाह, आंखें तरस गई थी। वो कलाम साहब ने हमारे सामने, और हमारे साथ में बहुत सारे लोग थे। रात हो गई थी, 9 बज गया था। हयात भाई और मैं वहां से पानी में भीगते भीगते हम लोग घर पहुंचे। यहाँ का अलग उमंग था। अल्लाह ने बेपनाह करम फरमाया कि मोमिन और मुसलमान मुखिया अता किया, मोमिन और मुसलमान मुखिया अता किया। ये सबसे बड़ी बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खानदाने मरहूम अबुल कलाम, मुखिया जुबेदा खातून, मेरा लोधी पंचायत। उनकी रूह बड़ी खुश हो रही होगी कि आज मुखिया जी भी इस मजलिस में है, मुखिया जी के जिताने वाले भी मजलिस में है। उनकी रूह कितनी खुश हो रही होगी। कलाम साहब दुआ देंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मरहूम अपने घर वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता है, कबूल कर लेता है। रद्द नहीं करता है, कबूल कर लेता है। जिंदाबाद, उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है। ये कलाम साहब थे जिन्होंने इस इलाके में नुमाइंदगी की। यहाँ पर बहुत सारे 25 साल सिगरेटी का पद संभाले, पद में रहे। यहाँ से बैंक मोड़ तक पूरे ललपनिया के लोग याद करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जो इंसान मर जाए और उस इंसान की तारीफ अगर 40 आदमी कर दे तो इंसान जन्नती है, वो इंसान जन्नती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। 40 आदमी जिसकी तारीफ कर दे वो इंसान जन्नती है। यहाँ भी तारीफ सुना, ललपनिया बैंक मोड़ में मेरी तकरीर हुई, मैं वहाँ भी तारीफ सुना। जरवाटाल में तकरीर हुई, वहाँ भी तारीफ सुना। रहमत नगर में तकरीर हुई, वहाँ भी तारीफ सुना। जब मैं लोगों को रहमत नगर भी है हजरत, वहाँ के लोगों ने कहा बड़े मिलनसार थे, बड़ी खुश नसीब थे, बड़े अच्छे थे। उन्होंने हज का इरादा किया था, उम्रा का इरादा किया था, और बारगाहे खुदावंदी ने ये पसंद नहीं किया कि मक्के मदीने जाकर मक्का मदीना सिर्फ देखोगे। अरे कलाम मियां, मरो तुम नबी को देखोगे, तुम मरो नबी को देखोगे। इसलिए उम्रा करने वाले, हज करने वाले सिर्फ मक्का देखते हैं, मदीना देखते हैं। लेकिन कलाम साहब ने कहा मैं मदीना नहीं देखूंगा, मदीने वाले को देखूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, मदीने वाले को देखूंगा। जिंदाबाद।
मदीने वाले को देखूंगा। और वक्त से पहले रब ताला का बुलावा हुआ, वो चले और जब चले तो ये कहा, बेटा मैंने बड़ा नाम कमाया है, अपनी जिंदगी में बेशुमार नाम कमाया है, लोगों के दिलों में मैंने राज किया है, ये छाप कभी भी छूटने ना देना, ये छाप छूटने ना देना। आज जनाब गुलजार साहब, अब्दुल कुद्दूस साहब, हयात साहब, हजरत साहब और जितने हमारे शहादत भाई और हजरत अली जितने लोग हैं, इन लोगों ने कहा मेरा बाप का नाम जब कल जिंदाबाद था आज भी जिंदाबाद रहेगा। मैं नबी का नाम का जलसा सजाऊंगा और सजा के बताऊंगा। मेरे दिल में नबी की मोहब्बत है और नबी के बताए हुए पर माँ बाप की भी मोहब्बत सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो समझिए। क्या बात है, आज तुम खुला हार ही पहना। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जवाब दीजिए आप लोग। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। हजरत हजरत जी, ये अयूब साहब के नहीं ठीक है। हाँ, पहले ही है। क्या बात है, क्या अरे माशाअल्लाह लीजिए यार, बोलिए। आप लोग कैमरा बढ़िया से रंग में कीजिए, बोलिए, रंग में बोलिए। सुभान अल्लाह। कैमरा बढ़िया से कीजिएगा। आज बहुत हसीन है हम, क्योंकि जो नबी की बात करता है, नबी वालों की बात करता है, वो बड़ा हसीन होता है। जी, आप शुरुए से हसीन हैं। हम सब नबी वाले है कि नहीं है? जी, नबी की बात करते हैं, नबी वाले नबी की बात करते हैं, नबी वाले हैं। हजरात जब भी कोई मसला होता, अभी ये 5 बेटे हैं और एक इंसान का कारी साहब, वो 4 गो बेटा जो था, हाँ 4 गो बेटा, एक का नाम टुटलाहा, दूसरे का नाम फटलाहा, तीसरे का नाम पंचरवा और चौथे का नाम बसिया था ना, बसिया था। यही हजरत माशाअल्लाह का, हाँ माशाअल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह। ये देखिए कारी साहब बोलते थे का अच्छा, अब उसके यहाँ रिश्ता जोड़ने वाला एक आदमी गया, कहा कि आपके बेटे कुंवारे हैं, मैं चाहता हूँ रिश्ता कर दो। कहा हाँ ठीक है ठीक है। टुटला खटिया लेके आओ। ये आदमी सोचा कि ये क्या कर रहा है, टूटल खाटी में बैठाएगा तो बर्बाद हो जाएंगे हम। अच्छा छोड़ दीजिए, जमीन में बैठ जाते हैं, खाटी उटी मत मंगाइए। बोरवा लेके आ। अच्छा साला खाटी भी मंगा रहा है टूटल और बोरा भी मंगा रहा फाटल। कहा छोड़ दीजिए, बोरवो मत मंगाइए, ऐसी जमीन में बैठ जाएगी। धूप की शिद्दत में बेचारा गया था। अच्छा ठीक है बात कीजिए, बात हो गई। कहा बहुत दूर से आया हूं पैदल सफर करके। कहा अच्छा ठीक है, उससे पहले आप खाना खा लीजिए। खाना खा लीजिए। कहा अच्छा खाना बना? हाँ। कहे बसिया फतवा लेके आओ। कहा बासी भात खिला रहा, बड़ा सोच के नाम रखा था, बड़ा सोच के नाम रखा था। कहा छोड़ दीजिए, खाटी भी टूटल, बोरा भी फाटल और भात भी बासी, छोड़ दीजिए, नहीं खाएंगे, बच गया खाना। अच्छा जाना चाहते हो? कहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन बड़ी तकलीफ से आया हूँ, साइकिल उकिल का इंतजाम हो जाए तो। बोला हाँ साइकिल लेके आ। या अल्लाह, साइकिल भी दे रहा, पंचर दे रहा, ये कैसे होगा? लेकिन वो आदमी चलाक था, लेकिन कलाम साहब पर कुर्बान जाओ, सुभान अल्लाह। इन्होंने नाम रखा है अब्दुल कुद्दूस, नाम रखा है गुलजार साहब, नाम रखा है हजरत अली, नाम रखा है हयात अली, नाम रखा है शहादत हुसैन। ये क्यों? हम नबी वाले हैं, नबी के जाने वाले हैं, हम नाम रखेंगे तो दुनियादार की तरह नहीं, बल्कि गुलामे अहमद की तरह जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम रखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला। नाम रखेंगे, अच्छा नाम रखेंगे, और सभी के नाम गुने बरकत होता है कि नहीं? नाम गुने बरकत है। मेरे नबी फरमाते हैं जब बच्चा तुम्हारे घर में पैदा हो जाए तो अच्छा नाम रखा करो, उस नाम की बरकत उसकी जिंदगी में शामिल हो जाती है। तो नाम रखोगे ना? ने सीरियल देख करके टुम टुम कुम चुम चुम देख करके कहीं रख दिया रिया, और रिया का माना क्या होता है? हवा खारिज होना।
क्या माना होता? हवा खारिज होना। रिया रखते हैं कोई हजरत, बेटी का नाम रिया रख दिया। हाँ रिया, और रिया का माना होता हवा खारिज होना। माज़अल्लाह कैसे कैसा नाम रखते हैं। नबी की मोहब्बत में हम लोग जीते हैं, तो जहां माँ बाप की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं, उससे पहले अपने नबी की मोहब्बत अपने दिल में रखकर दुनिया को बताते हैं हम मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में, चलेंगे तो नबी की मोहब्बत में, बोलेंगे तो नबी की मोहब्बत में, और माँ बाप से मोहब्बत करेंगे तो नबी की मोहब्बत में। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे गुलाम सरवर साहब, ये यूनिवर्सल प्रीमियम टाइल्स और ग्रेनाइट की दुकान। हमारे मुसलमानों में दुकान हो तो क्या बड़ी बात है। हमारा पैसा गैरों में जा रहा है, जो हमारे पैसा को टैक्स लगा करके और हम ही पर तीर और तलवार चलाता है। मुसलमानों को पैसा दिया करो। ये गोमिया में खुल चुका है गुलाम सरवर साहब की दुकान, और ये दुकान एक मुसलमान भाई खोले हैं, जो आप पर कभी कोई आफत आएगी तो आपको 10 रुपए से मदद कर सकता है। इसलिए गुजारिश है कि आप वहां जाएं, और मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई भी काम हो, आप वहां से खरीदारी करें, क्योंकि हमारा पैसा हमारे पास। ये ऐलान हो चुका है। आज जितने बड़े बड़े दल हैं कुफार और मुशरिकीन के, मुसलमानों को तबाह करने के लिए, ये कहते हैं उसकी दुकान से खरीदारी मत करो, उससे उसको बिल्कुल बेजार रहो, उससे दूर रहो। तो हम मुसलमानों को भी चाहिए कि हमारा मुसलमान जहां भी कोई भी तिजारत कर रहा हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कपड़े का व्यापारी हो, या और कोई व्यापारी हो, मुसलमानों को चाहिए कि हम अपने भाई से खरीद कर नबी के दिल को और नबी की रूह को खुश करें। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है, जब तुम अपने भाई को मजबूत करते हो तो यकीनन अल्लाह ताला तुझे मजबूत करेगा, तुझे मजबूत करेगा। एक बाप और माँ की मोहब्बत कितनी बड़ी होती है, सुन लो। एक माँ ने कहा, बेटा तुम मेरी मोहब्बत का हक अदा करना चाहते हो? कहा हाँ करना चाहता हूँ। कहा कि मेरी मोहब्बत में तुम आज मेरे साथ सो कर देखो, आज मेरे साथ सो कर देखो। एक माँ ने बेटे को कहा, मेरे साथ सो कर देखो। रात की तारीकी है, ठंड का मौसम है, माँ के साथ में नौजवान सो जाता है, अर्ज करता है मैं आपके हक को अदा करना चाहता हूँ। रात में सोया 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 माँ आवाज देती है, बेटा पानी लेकर के आओ। वो फौरन गया, पानी लेकर के आया। उसको पीना नहीं था, आजमाना था। वो पानी को गिरा देती है गीले बिस्तर में, फिर कहती है कि बेटा पानी गिर गया है, लेकर के आओ। फिर दूसरे दिन दूसरे मर्तबा फिर पानी के लिए तलब करती है। जैसे ही आंख लगती है आवाज देती है, बेटा पानी लेकर आओ, बेटा पानी लेकर आओ। और इस तरह से 7 मर्तबा करती रही, पानी गिराती रही, और वो सूखे की तरफ सोती थी। और सूखे में सो करके बेटे को कहा, बेटा पानी गिर गया है, क्या करूं, इसलिए आप इसमें सो जाइए, आप इसमें सो जाइए। जब मामला ऊपर चढ़ गया, बेटे ने कहा, अम्मी ये क्या मजाक है, आप पानी गिरा देती है और बार बार बेटे को तकलीफ देती है। कहा बेटा तेरा इम्तिहान हो गया। अरे मैं जब तुम छोटा था उस वक्त दिन में और रात में ठंडा के मौसम में 7 मरतबा से ज्यादा पेशाब करता था। मैं गीले की तरफ अपने सो जाती थी और सूखे की तरफ तुझे सुलाती थी। ये है बाप का मकाम, ये है बाप का मकाम, ये है माँ का मकाम। इसलिए लोगों, माँ बाप का हक कभी अदा नहीं हो सकता है। अगर माँ बाप का हक अदा करना चाहते हो तो आज इस मजलिस पाक से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम मरेंगे तो मरने से पहले माँ बाप की रूह को खुश करके जाएंगे। और माँ ने कहा, बेटा ठंडक के मौसम में आज एक रात गीले बिस्तर में तू सो न सका, मैं तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रख करके, और जब पैदा हुआ पेशाब करता था, ठंडक के मौसम में तेरे पेशाब में मैं सो जाती थी और सूखे की तरफ तुझे सुलाती थी। तू माँ का हक अदा करने चला है, बाप का हक अदा करने चला है। कोई माँ और बाप का हक अदा किया है न कर सकेगा, इसलिए कि माँ का मकाम बहुत ऊंचा है। हजरत हारून बल्कि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, बस 2-4 मिनट में सुनिए, जो कि तकरीर हो जाए, काम की बात हो जाए। हारून बल्कि
सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? मिजाज है हल्का? हाँ, वरना एक आदमी जो है अपनी बीवी को कहा पजामा सिला के लाया और कहा पजामा थोड़ा लंबा हो गया है, छोटा कर दो। बीवी खाना खाई सो गई। रात में जब नींद खुली का वही शौहर जो है गोमिया से ला देता है, हॉर्लिक्स ला देता है, बिरंदर होटल से समोसा ला देता है। बहुत मानता है मेरा शौहर, एक काम कहा और हम नहीं किए। उठी, कैंची ली, 4 उंगल जो लंबा का कहा था उसने 4 उंगल काट दिया और काट के सो गई। इतने में बेटी की आंख खुल गई। अब जब बेटी की आंख खुली, कहा मेरे अब्बू मेरे हर फरमाइश पूरी करते हैं, और उसने एक काम कहा मैं नहीं सुनी। वो भी उठी और 4 उंगल वो भी काट दी। इतने में बहू की नींद खुल गई। वो भी कहा मेरे ससुर जी बहुत मानते हैं हमको, और मामला ये है कि उनकी बात नहीं सुनेंगे, सुबह उठेंगे कहेंगे पजामा लंबाई है, तुम लोग कोई नहीं काम कर सकती हो। वो भी उठी और 4 उंगल वो भी काट। अब सुबह होते होते वो पजामा जो है लंगोट बन गया, वो पजामा ही नहीं रहा। हमारे लोधी में एक आदमी जल्दी से बाराती जाने के चक्कर में बीवी का पजामा निकल के भागी। बीवी का पजामा, और वो भी उल्टा पहन के निकला। हाँ, उल्टा पहन के निकला। जब वो बारात में गया और खाने लगा, तब उसको लोग कहा भाई तुम क्या किया? बोला अरे गलती से एक के खुटिया में टागल रहा था, उसका वाला पहना गया है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। कीजिएगा क्या? नहीं कीजिएगा। पूरा मजमा कह रहे सुभान अल्लाह। हमको अपने माता पिता पर आज बड़ा अभिमान है। बोल दो सुभान अल्लाह। हमको अपने माता पिता पर आज बड़ा अभिमान है, जिनके पुण्य प्रताप से है डर, जग में बड़ा इंसान है। याद करो दिन बचपन की माँ कैसे दौड़ी आती थी, रोने की आवाज को सुनकर माँ कैसे घबराती थी, रोने की आवाज को सुनकर माँ कैसे घबराती थी। जो माँ की ममता न समझे वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पर आज बड़ा अभिमान है। समझ में आई बात? समझ में आई? नहीं समझ में आई। नहीं, बात हम बोल रहे हैं, बात स्त्रीलिंग है और बात समझ में आई कहा जाता है। रोशन साहब आया नहीं तो आया खाया गया कुछ नहीं मिला। माँ की मोहब्बत में, आप माँ बाप की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं। मैं इन शोरा की तरह नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरी आवाज पर नहीं जाना। आखिरी शेर में पढ़ रहा हूँ, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ हजरत, सुनिएगा। अगर सच्चाई है इस शेर में तो आप दाद दीजिएगा। पीते पीते दूध कभी ख्वाबों में हम खो जाते थे, ठंडक में माँ खुद सोती और गोद में हम सो जाते थे, ठंडक में माँ खुद सोती और गोद में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा फूल समान है। हमको अपने माता पिता पर आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है। और आखिरी में उनके दिल से पूछो जिनके माया बाप नैनों से ओझल है, जैसे जल बिन तड़पे मछली वैसे माँ बिन बेकल है। माँ और बाप का साया बहुत अजीम साया है।
जो कुछ हो, लेकिन जहां पर सारे लोगों की मोहब्बतें दुनिया में खत्म हो जाती है, माँ और बाप साया बन करके उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं मेरे नूरे नजर, मेरे लफ्ते जिगर, तूने क्या हुआ है, क्या बात है, बिजनेस में घाटा हो गया है, कोई तिजारत में घाटा हो गया है। वही माँ पूछती है, वही बाप पूछता है। लेकिन आओ आखिरी जुमला, आखिरी वाकया बोल करके मैं निकल रहा हूँ, है कि नहीं? आ चुके वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, सुनिए। लेकिन आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं। इतना खर्चा किया गया है, गाड़ी वाला कोई भी है भैया, इतना हॉर्न मत मारो, यहाँ जलसा हो रहा है। और हजरत आ गए, लगता है हजरत आ गए, हजरत पीर साहब जुमला हो सकता है, हाँ हजरत ही आए हैं, हाँ ठीक है, हजरत आ गए हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन कज़्ज़ाक़ति लती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात आप लोग इधर ध्यान दीजिए, इधर आइए। डॉक्टर साहब टेटनस का सुइया ले लेंगे आपसे, हाँ डॉक्टर साहब देखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े हो जाइए, इस्तक़बाल कीजिए हजरत का। आप जो लोग पीछे हैं आगे आ जाइए, आगे आइए, जो लोग पीछे हैं आगे आइए, कुर्सी भर दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर अल्लामा मुजीबुर रहमान साहब जिबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग आगे आ जाइए, आगे लगाइए, आगे आइए, हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हुजूर, आप लोग हजरत को आने दीजिए, स्टेज में आके मुसाफा मुआनका करेंगे, आप लोग आने दीजिए, हुजूर को आने दीजिए, रास्ता दे दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, जो लोग पीछे हैं वो आगे आके बैठ जाए, आगे आके बैठ जाए। हुजूर के लिए कुर्सी ले आओ भाई, कुर्सी लाओ, कुर्सी, हाँ जी आइए, हुजूर को लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। आइए यहाँ बीच में लाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए, बैठ जाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए, बैठ जाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन कज़्ज़ाक़ति लती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, कुर्सी लाइए ना भाई, कुर्सी दीजिए ना, वही कुर्सी दीजिए ना, वही कुर्सी दीजिए हुजूर। पूरा मजमा पेश की कहते सुभान अल्लाह। अरे बड़े खुश नसीब है हम लोग, ये सारे मजलिस को कबूल कराने वाले हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह, हुजूर आ गए। और मैं हुजूर की शान में एक शेर पढ़ देता हूँ, जल्दी से पढ़ देता हूँ। हर एक लम्हा नजर में पीर रहते हैं, हर एक लम्हा नजर में पीर रहते हैं, मेरे जिस्म जिगर में पीर रहते हैं। और कोई तो आके जरा देखे मेरी बस्ती में, हर एक सुन्नी के घर में